Hello students, this is Dipashri ma'am and you are watching Next Level Chemistry. Today's topic is coordination compounds. Now coordination compounds is a subtopic of coordination chemistry. Now what are coordination compounds? These coordination compounds consist of a central metal atom or ion surrounded by some molecules or ions. Now for example, we have taken cisplatin. Now what is the chemical formula of cisplatin? Pt, that is platinum, NH3 twice Cl2. The structure is just given besides it, right? So Pt, that is platinum, is the central metal atom over here, and NH3 and Cl2 are the ligands. Now what are ligands we will see in the later slides, but just remember for the sake that they are called as ligands. Now these molecules are atoms, that is Cl2 and NH3 twice, are bonded with platinum with represented by some, that bond is represented by some arrow, right? One-sided arrow. Now what is one-sided arrow represents? It represents coordinate bond. Now what are coordinate bonds? Coordinate bonds are the bonds in which one atom or molecule donates its electron pair to another molecule or atom. Are you understanding? Yeah. So the one who accepts those electron pairs, right, the arrow heads towards it. Okay, so here platinum is accepting, the electrons from chlorine, right? So arrow is heading towards platinum. NH3 नाइट्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, तो वो भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है प्लैटिनम को. तो अगेन the arrow heads towards whom? Platinum. Are you understanding what is coordinate bond, why they are here? तो जब यहाँ ऐसे कंपाउंड्स में जहाँ पे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Coordination compound is basically studied in 4 parts. Now what are those 4 parts? First part is introduction, second part is IUPAC, third part is isomerism, and fourth part is theories. Now in introduction we will study about definition, oxidation number, coordination complex, and ligands. Now today in this session we will be doing just little adjustment. We will be first studying what is coordination complex, then we will study about ligands, then we will see about oxidation number and coordination number. Okay, now coming to the second part, IUPAC. IUPAC, we all know it's a basic nomenclature system. Third part and fourth part are very important. It is isomerism and some theories related to coordination compounds. Now what is isomerism? We all know geometrical or optical isomerism. We will be studying it in the concepts of coordination chemistry. Now what are the theories related to coordination chemistry? Those are Werner's theory, Sidgwick's theory. In this Sidgwick theory we are going to learn about EAN rule. Then coming next is VBT, that is valence bond theory, and then last is CFT. Okay. Now coming to the next slide is introduction to types of salts. Now what are types of salts? एक तो हमें नमक पता है जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं खाने में, NaCl. सेकेंड वी यूज इट KCl, राइट? तो NaCl एंड KCl आर सिंपल सॉल्ट्स बिकॉज दे आर आयनिक इन नेचर. कौन से बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं वो दोनों? आयोनिक बॉन्ड. ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. व्हाट आर दिस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स? नाम से ही पता चलता है बड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, राइट? सो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more stable compounds. Combination of 2 or more stable compounds in stoichiometric ratio. Stoichiometric ratio मतलब whole numbers के ratio में. For example, एक NH3 है, एक Cl है, एक Fe है. Okay, so I am telling you some whole numbers. So ये whole numbers में ही वो complex compound बनेगा. Okay. Now coming to complex salts in detail. Complex salts is again divided into 2 kinds.
डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. नाउ व्हाट इज अ डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट ऐसा सॉल्ट होता है जिसको हम लोग अगर पानी में डाल दें, व्हेन वी मिक्स इट विथ वाटर इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू बेसिक आयंस. फॉर एग्जांपल हम लोग ने यहाँ पे लिया मोर सॉल्ट, दैट इज FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 एंड 6H2. तो अगर हमने इस मोर सॉल्ट को पानी में मिक्स कर दिया, देन इट विल डिसोसिएट इनटू SO4 आयंस, NH4 ions and Fe ions. Correct? On the contrary, there is a coordination complex. Coordination complex ऐसा salt, ऐसा type of complex salt है जो अगर हम लोग पानी में मिक्स करें, if we mix it with water, then it will dissociate to give at least one complex ion. Okay? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसा सॉल्ट है जो अगर हम लोग पानी में मिक्स करते हैं तो वो हम लोग को एटलीस्ट एक कॉम्प्लेक्स आयन देगा. आगे जाके इसके डिटेल्स में देखते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग ने लिया है K4FeCN6. K4FeCN6 अगर आपने ध्यान से देखा, K4 इज आउट ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट्स, FeCN6 इज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स. अब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, क्योंकि देखो अगर हम लोग देखते हैं कि इसका रिएक्शन K4FeCN6 कैसे डिसोसिएट हो रहा है, 4K प्लस FeCN6 4 माइनस. तो यहाँ पे जो 4K प्लस है वो तो कैटायन है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है वो कन्वर्ट हुआ है आयन में. देखो FeCN6 के ऊपर माइनस चार्ज आ चुका है, सो इट्स नाउ अ कॉम्प्लेक्स आयन. करेक्ट? सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमें कॉम्प्लेक्स आयन मिल चुका है. ओके, सो नाउ जनरल टर्म्स said in coordination compounds are coordination sphere and ionization sphere. Now what is coordination sphere and ionization sphere? Coordination sphere is also called as complex ion and ionization sphere is also called as counter ions. तो अभी जो हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में रिएक्शन देखी थी, तभी हम लोग को क्या मिला था, 4K प्लस एंड FeCN6 4 माइनस. तो जो FeCN6 4 माइनस है उसमें मैंने कहा था कि वो कॉम्प्लेक्स आयन है, राइट? तो वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन में मतलब किसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में. तो जो ब्रैकेट में था वो हम लोग ने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बोल दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर था उसे हम कहते हैं काउंटर आयंस, और वी कॉल इट एज आयनाइजेशन स्फीयर. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? ओके, सो देखो दो पॉइंट्स भी लिखे हैं हर पार्ट में. This part, that is coordination sphere part, is written inside the square bracket, while ionization sphere का part is written outside the square bracket. This part consists of central metal ion. Which part consists of central metal ion? FeCN6 में Fe स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था, मतलब सेंट्रल मेटल एटम हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मिलेगा. So this part consists of central metal atom or ion and ligands representing coordinate bond, while ionization sphere consists of ionizable groups representing what, ionic bond, right? K plus मिला था हम लोग को, तो वो ionizable group था, तो ionic bond से वो coordination complex में बंधा हुआ था. Now coming to next slide, देखो हम लोग ने एग्जाम्पल भी लिया है वहां पे, K4FeCN6 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, जहाँ 4K प्लस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नहीं जा रहा है, 4K प्लस कम्स इन आयोनाइजेशन स्फीयर. करेक्ट? एंड FeCN6 बिकॉज इट इज इन स्क्वायर ब्रैकेट इट विल गो टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर. आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? या. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयंस. टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयंस. देखो हम लोग ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स आयंस की बात की, अब वो कॉम्प्लेक्स आयंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, इसलिए हम लोग उनको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयंस. नाउ ऑन बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयंस हमें एक टाइप मिलता है और दूसरा टाइप हमें मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ लिगैंड्स. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयंस हमारा फर्स्ट टाइप है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस. ओके, सो एनायनिक मतलब, एनायन मतलब क्या, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा हो जाता है एनायन. तो अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज है तो वो हमारा बन जाता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन. ओके, उसका एग्जाम्पल है NiCl4
-2, देखो कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 चार्ज है, सो इट्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। दूसरा एग्जाम्पल है K3FeCN6। देखो अभी K3 जो है वो आयनाइजेशन स्फीयर में आ रहा है और FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो वो हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही मतलब होता है कॉम्प्लेक्स आयन, राइट। तो कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? अगर K3 डिसोसिएट हो जाता है 3K प्लस में, तो FeCN6 पे चार्ज आ जाता है -3, तो अगेन -3 आया तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन हो जाता है इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस क्या होता है? कैटायंस किसे कहते हैं? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हो जाता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। अभी उसके एग्जांपल्स क्या है? CO इज कोबाल्ट, NH3 देखो कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज क्या है? +2, सो इट्स अ कैटायनिक। सेकेंड एग्जाम्पल इज Ni, दैट इज निकल, H2O6 Cl2। अगर मैंने Cl2 आयनाइजेशन स्फीयर में जो आता है उसको डिसोसिएट कर दिया तो कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज क्या आएगा? +2, सो इट्स अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज न्यूट्रल इज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग नो चार्ज। अभी उसकी एग्जाम्पल है FeCO5 एंड NiCO4। व्हाट इज CO ओवर हियर? इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? या अभी यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो हम लोग केमिकल फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, उसके जो नाम है, उसके जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये नॉमेनक्लेचर हम लोग नेक्स्ट सेशन में ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं। ओके, IUPAC सेक्शन में हम लोग ये सारे नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट हम लोग कवर कर लेंगे। और जो चार्जेस ऊपर लिखे हैं, फॉर एग्जांपल NiCl4 के ऊपर -2 चार्ज है, तो वो -2 कहाँ से आया, ये हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर में देखने वाले हैं। सो नी नॉट वरी नाउ, जस्ट रिमेंबर कि वो एनायनिक क्यों है, कैटायनिक क्यों है और न्यूट्रल क्यों है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट slide, types of coordination complex ions on the basis of ligands. Now on the basis of ligands we have homoleptic complex and heteroleptic complex. Now homoleptic complex मतलब क्या? What is homo? Homo is same. अगर same ligands हैं, अगर सेम लिगैंड्स है तो हम लोग उसको बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर अलग अलग रहेंगे लिगैंड्स तो हम लोग उनको बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में एग्जाम्पल क्या लिया था हम लोग ने? NiCl4-2। अब निकल से चार क्लोराइड आयंस बॉन्डेड है, राइट, चारों के चारों क्लोराइड आयंस है, सो ऑल आयंस आर सेम, सो इट इज कॉल्ड एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में एग्जाम्पल हम लोग ने लिया है CONH3 5Cl एंड Cl2। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो तो आयनाइजेशन स्फीयर में आ रहा है, तो वी नीड नॉट कंसिडर दैट, वी ओनली नीड टू कंसिडर व्हाट इज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। व्हाट इज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट? CO। नाउ CO इज आवर सेंट्रल मेटल एटम। NH3 5Cl, अभी 5 NH3 है और एक Cl है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड्स है, सो हेटेरो टाइप ऑफ लिगैंड्स, सो वी कॉल इट एज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ व्हाट आर लिगैंड्स? हम लोग बहुत स्टार्टिंग से ही लिगैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली आर लिगैंड्स? नाउ लिगैंड्स आर दोज स्पीशीज विच सराउंड्स द सेंट्रल मेटल एटम. These are some basic words. Okay, this is a very basic definition. In detail, what is a ligand? Ligand are the species which have a tendency to donate electron pairs, okay, to metal atom or ion. एक ऐसा species है, ऐसा molecule है, ऐसा ion है जिसमें क्षमता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सामने वाले मेटल एटम को दे सके, उसे हम लोग बोलेंगे क्या? लिगैंड. ओके, सो लिगैंड और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हम लोग ने बारे में पहले ही बोल दिया है कि वो सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है. सिंगल हेडेड एरो, जो हेड रहता है एरो का, वो किसकी तरफ रहेगा? जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है. अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कौन एक्सेप्ट कर रहा है? सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ओके, so here central metal atom or ion is an electron acceptor while all ligands are electron donors. Okay,
Now coming to the types of ligands, we have again on the different types on based on again charge. So it's a positive ligand, negative ligand and neutral ligand. जैसे हम लोग ने कॉम्प्लेक्स साइंस में देखा था एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल है, वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल है. अगर लिगैंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव लिगैंड, अगर लिगैंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो है नेगेटिव लिगैंड, और अगर लिगैंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो होगा न्यूट्रल लिगैंड. यहाँ पे पॉजिटिव लिगैंड में हम लोग ने एग्जाम्पल लिया नाइट्रोसोनियम आयन. नाइट्रोसोनियम आयन इज NO+, तो अगर प्लस चार्ज है तो वो होगा पॉजिटिव लिगैंड. N2H5+, दैट इज हाइड्राजीनियम आयन. हाइड्राजीनियम आयन में भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो है पॉजिटिव लिगैंड. नेगेटिव लिगैंड में हम लोग ने एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोक्सो एंड साइनो, दैट इज OH- एंड CN-. तो ये इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है तो ये बन गए हमारे नेगेटिव लिगैंड. न्यूट्रल लिगैंड में हम लोग ने एग्जाम्पल्स लिए हैं H2O एंड NH3. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग को ये यहाँ इस स्लाइड में ये याद रखना है बहुत ज़्यादा कि जो पॉजिटिव लिगैंड्स है वो एंड होते हैं नॉमेनक्लेचर में IUM, ये 3 लेटर्स से IUM से एंड होंगे. जैसे नाइट्रोसोनियम, हाइड्राजीनियम. ओके, नेगेटिव लिगैंड्स एंड होंगे किससे, O से, लेटर O से, जैसे हाइड्रोक्सो, साइनो. ऑलराइट, न्यूट्रल लिगैंड के बारे में हम लोग IUPAC के वक्त देखेंगे. नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ लिगैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी. नाउ व्हाट इज डेंटिसिटी? डेंट मतलब होते हैं दांत, और यहाँ पे दांत रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से. ओके, दिस इज जस्ट द सिंपलर वे टू रिमेम्बर कि व्हाट इज डेंटिसिटी. ओके, नाउ डेंटिसिटी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय एटम्स इन लिगैंड्स. लिगैंड अगर मैं बात कर रही हूँ, एक लिगैंड है तो उसमें जितने भी एटम्स रहेंगे सारे के सारे डोनर एटम्स नहीं रहेंगे, उसमें से बहुत कम एटम्स जो रहेंगे वो डोनर एटम्स, सिलेक्टेड एटम्स ही डोनर एटम्स रहेंगे जिनके पास टेंडेंसी होगी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सके, डोनेट कर सके, नॉट शेयर. ओके, नाउ कमिंग टू द टाइप्स मोनोडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड. अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो वो मोनोडेंटेड लिगैंड है. एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयर हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगैंड्स. एंड मोनोडेंटेड का हम लोग ने एग्जाम्पल लिया है क्लोराइड आयन, OH आयन, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन. क्लोराइड आयन मतलब एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर. वैसे ही OH में भी ऑक्सीजन भी एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो दे आर कॉल्ड एज मोनोडेंटेड लिगैंड्स. नाउ कमिंग टू पॉलीडेंटेड लिगैंड्स, अगर एक से ज्यादा डोनर एटम्स रहेंगे तो वी विल कंसिडर देम इन पॉलीडेंटेड लिगैंड्स. नाउ पॉलीडेंटेड लिगैंड्स में भी हम लोग टाइप्स देख रहे हैं. पहला वाला टाइप है बाइडेंटेड लिगैंड्स, देन कम्स ट्राइडेंटेड लिगैंड्स एंड देन कम्स हेक्साडेंटेड लिगैंड्स. अब बाइडेंटेड लिगैंड्स मतलब 2 डोनर एटम्स का एग्जाम्पल हम लोग ने लिया है इथिलीन डाइअमाइन, इन शॉर्ट वी कॉल इट एज EN. तो देखो इथिलीन CH2 उसको डाइअमाइन मतलब NH2 दो नाइट्रोजन है मतलब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मतलब 2 डोनर एटम्स है, इसीलिए बाइडेंटेड लिगैंड्स. सेकेंड इज ट्राइडेंटेड लिगैंड्स. अब ट्राइडेंटेड मतलब 3 डोनर एटम्स. स्ट्रक्चर इज डाइइथिलीन ट्राइअमाइन, वी कॉल इट इन शॉर्ट एज डाइन. देखो स्ट्रक्चर डाइइथिलीन मतलब 2 CH2 मॉलिक्यूल्स. ओके, सॉरी 2 इथिलीन मॉलिक्यूल्स दैट इज CH2. ट्राइअमाइन मतलब 3 अमाइन है उसमें. सो 3 अमाइन में 3 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, सो 3 डोनर एटम्स. ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू हेक्साडेंटेड लिगैंड्स. हेक्सा मतलब 6 डोनर एटम्स चाहिए होंगे. हम लोग ने वहां पे एग्जाम्पल लिया है EDTA का. अब EDTA में हम लोग के पास 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं. 2 नाइट्रोजन एटम्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, करेक्ट, तो 2 इधर ही हो गए. अब बाकी के जो 4 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, 4 ऑक्सीजन में हम लोग ने आपको दिखाया है एक ऑक्सीजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, राइट. 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है लेकिन वो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है.
एक ऑक्सीजन एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो 4 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और 4 ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब 6 डोनर एटम्स, सो हेक्साडेंटेड। Are you understanding what has been taught in today's session? Okay, so if you liked our today's session, अगर आपको पसंद आया हो, आपको समझा हो, तो प्लीज़ आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, डू कमेंट your doubts or your reviews in the comment section. Thank you.